آج کے پروگرام میں میں آپ کو جو واقعہ دکھانے جا رہی ہوں وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ ابو کو ہمارے سامنے فائر مارے ہیں ساتھ پہ۔ یہ ساتھ تھی نا، 2-3 بندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے کیے۔ جو مدعی بھی تھا اس مقدمے میں اسی نے اس کو قتل کیا۔ میں نے قتل کیا۔ کیوں مارا؟ باپ دوسری شادی کی ہوئی تھی، تم پہ سوتن ڈالی تھی؟ ہمارے پہ ظلم بھی بہت کیا ہوا تھا۔ بہن ہے، ان کی بازو توڑ دی 2-3 جگہ سے۔ وہ مارتے تھے، مار کے پھر وہ شراب پلاتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور مجھے کہتے ہیں نیلا زکا۔ کہتے ہیں کہ حیوان اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور انسان اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کا پیٹ بھر جائے، یعنی کہ اس کی نیت اس وقت بگڑ جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں میں آپ کو جو واقعہ دکھانے جا رہی ہوں وہ دل دہلا دینے والا ہے۔ ایک سگا بیٹا ہی سگے باپ کا قاتل بن جاتا ہے۔ وہ باپ جس نے اس کو پیدا کیا، اس کے بعد وہ بیٹا جس سے اس نے توقع لگائی کہ میرے جنازے کو کاندھا دے گا، اس بیٹے نے ہی ایک نہیں تین گولیاں اس باپ کے دماغ میں اتار دیں۔ ایسا کیوں کیا اس نے؟ باپ کون تھا؟ بیٹا کون تھا؟ کیا دونوں ہی آپس میں کسی تنازع کی زد میں تھے، یا کیا کسی اور نے اور پڑا کسی اور کے ساتھ؟ معاملہ تھا کیا؟ آئیے آپ کے پروگرام میں دکھاتے ہیں۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے؟ محمد علی نام ہے۔ تم تو بڑے مطمئن کھڑے ہوئے ہو، پتہ ہے نا کیا کر کے آئے ہو؟ نہیں پتا؟ تمہیں نہیں پتا تم کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے کچھ کیا نہیں۔ شاہد صاحب بڑی جلدی الزام لگا دیتے ہیں آپ لوگ، ہیں؟ جی اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ جی ہم تو میرٹ پہ تفتیش کرتے تو ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ابھی بیان اس نے بدلا ہے، پہلے اس کے بیان ہو چکے ہیں، سارے میڈیا پہ بھی آ چکے ہیں، اچھا آپ دیکھ سکتے یہ ہیں۔ بیان بدل رہا ہے؟ جی کیوں بھائی، تم نے اتنا بڑا جگرا نکال لیا کہ باپ مار ڈالا ہے؟ میں نے نہیں مارا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں مارا انہیں۔ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ ہے تھی، اس کی بیوی کو انہوں نے نکالا ہوا تھا گھر سے باہر، 2-3 ماہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی ناچاکی تھی، گھر سے باہر پیسے بھی دیے ہوئے تھے، جو ان کے پاس ویڈیو بھی ہے، فون میں ویڈیو ہے، جو اس نے دھمکیاں بھی دے رہی ہے۔ تسلی سے سوچ لو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جو تسلی سے سوچ لو ایک بار۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، سوچ کے بتا رہا ہوں۔ کچھ یاد آ جائے شاید۔ کچھ بھی ہے نہیں، نہیں آ جاتا ہوتا ہے بعض اوقات، یاد نہیں آتا۔ ہیں؟ یاد کیا آنا ہے؟ اچھا اس بیوی کے ساتھ ان کی ہے تھی، آن بان ان کی چل رہی تھی۔ حوصلہ کرو، ہمت رکھیں بیوی۔ اللہ آپ کو حوصلہ دے۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کی شادی؟ تقریباً 14 سال۔ جس نے اپنے شوہر کو قتل کیا وہ کون ہے؟ وہ ان کی پہلی بیوی سے ان کا پہلا بیٹا، باپ کو مارنے والا سگا بیٹا؟ سگا بیٹا۔ آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں نا؟ جی جی، کیوں مارا اس نے؟ یہی کہ جائیداد کی وجہ سے مارا ہے، کہ تنازع تھا کہ مجھے نہیں ترجیح دیتے، زیادہ ان بچوں کو ترجیح دیتے ہیں جو میرے پہلے بچے ہیں، یتیم بچے جو پہلے ہیں میرے، ان کے ساتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ ان کے ساتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے، جو گھر بنایا ہم نے، تو وہ کہتا تھا کہ یہ بھی میرے سے برداشت نہیں ہوتا، انہوں نے عبداللہ کا نام ادھر کیوں لکھا ہوا ہے۔ جس دن آپ کے شوہر کو مارا جی اس دن کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ میں تو اپنے میکے میں تھی اس دن، اچھا 2 دن میکے میں تھی، ہمارا کوئی ادھر کام تھا تو ادھر گئے ہوئے تھے، تو اسی نے مجھے 4:12 پہ اس نے مجھے بتایا کہ راجہ سجاد کو گولیاں مار گیا۔ کس نے بتایا؟ اسی نے، محمد علی نے، یہ جو پکڑا۔ یہ ملتا تھا پہلے آپ کو؟
जी अब्बू के पास जाता आता था। फिर तो फिर मैंने रोना पीटना शुरू कर दिया और मेरी अम्मी कहती है कि क्या हो गया। मैंने कहा कि सजाद को गोलियां मार गया। कहते हैं कि आपको किसने बताया। मैंने कहा ये मुझे नहीं पता कि किसने बताया, क्योंकि इसने कभी भी मुझे फ़ोन नहीं किया था, ना इसका फ़ोन नंबर था मेरे पास। तो मैंने समझा कि पता नहीं शायद कोई किसी ने बताया मुझे। तो जब ये मेरा बेटा था पास तो कहते हैं कि दिखाएं फ़ोन की किसने कॉल किया आपको। तो जब इसने फ़ोन चेक किया तो इसने कॉल इसको वापस की है। तो कहते हैं कि कौन बोल रहा है। कहते हैं मैं उसामा बोल रहा हूँ। ये कहते हैं कि क्या हुआ। कहता है कि अब्बू को गोलियां मार गए। तो जब हम आए हैं तो आगे ये जुल्म किया हुआ था। ये वहाँ मौजूद था कौन ये उसामा? ये इनको मार के और फिर गाड़ी में लेके और ये अस्पताल भी पहुंच आए। पता कैसे चला कि यही है? मेरी बच्ची ने खुद देखा इसको। घर पे थी ये बच्ची? आप घर पे थी? जी ये सामने कमरे में थी और बरामदे में लेटे हुए थे वो, ठीक। सो रहे थे वो। क्या नाम है आपका? सराहत सजाद। सराहत। क्या देखा था कि लड़ाई हुई थी कोई? नहीं, हम कमरे में सो रहे थे तो बरामदे की बल्ब जा रहे थे तो हमें फायर की आवाज़ आ गई। जब हम उठे हैं तो सामने जो सर है वो पिस्तौल उठा गया तो अब्बू को उसने हमारे सामने फायर मारे हैं सर पे। आप लोगों को नहीं डराया कि भाग जाओ? हम उधर खड़े थे। जब उसने मार चुका है, जब उसने हमें देखा है तो वो हमें कहता है कि जाके चुपचाप जाके ना बिस्तर पे सो जाओ, अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर हमें नहीं पता क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ। चेहरा तो उसी दिन सामने आ गया ना जब पहले दिन ही आपकी बच्ची ने ही देख लिया था। तो हमने तो डर के मारे फिर नहीं ने बताया कुछ। अच्छा, कितने दिन नहीं बताया? कितने दिन चुप तकरीबन रहे? 1 हफ्ता। चुप रहे आप? जी किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं बताया। आपके सास ससुर हैं? नहीं है। आपके जो ससुराल वाले हैं जो वो ससुराल वाले हैं वो भी ज़ाहिर वो उन्हीं के पास ही रहता था। जो मेरे देवर जी तो हमारे साथ तो उनके तलाकात सही नहीं थे, ना हमारे घर वो आते थे ना जाते थे। तो हम फिर किसको बताते। कोई भी हमारी बात पे उस वक्त यकीन ना करता कि ये अभी मुद्दईयत लेने कोई आया? नहीं, उनमें से अभी तक तो नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। आप खुद मुद्दईया बनना चाहिए। जी क्या कहेंगी अपने शौहर के कातिल? बिलाखिर वो आपका बेटा चाहे सतेला सही। इसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इंशाल्लाह। और आर्मी चीफ आपकी वसादत से मेरा आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मेरी अपील है कि मेरी मदद करें इस मामले में। बिल्कुल इसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे रोना इस बात पे आया कि मैं सही आज़ादी आज तक उस बंदे ने, मैं इतने बंदों के सामने आज तक भी नहीं हुई, ना उन्होंने मुझे होने दिया। कभी हमारे घर को मिस्त्री वगैरह काम करते थे तो बड़े बड़े चादरें आगे डाल देते थे कि कुछ देखे नहीं मुझे। मैं आज तक 14 साल हो गए दुकान पे भी नहीं गई। हमारे पड़ोस में दुकान है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे वक्त कहाँ पे ले आया। सजाद के साथ ये हो गया और मैं यहाँ पे थाने में और इधर उधर लोगों के सामने जा रही हूँ। अगर वो जिंदा होते तो आज मैं बिल्कुल भी न जाती। इस सालों ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया और मेरे बच्चों के साथ। अगर इसको कुछ चाहिए था तो ये वैसे बोल देता, हम सब कुछ इसको दे देते, ये इतना जुल्म ना करता। मेरे पहले बच्चे भी यतीम सजाद ने पाले, आज उनके अब्बू भी चले गए, इनके भी चले गए। अल्लाह आपको हिम्मत दे, हौसला दे। अब आप इनका बाप भी हैं, इन बच्चों की माँ भी हैं। आप हिम्मत हार जाएंगी, हौसला हार जाएंगी, बड़ी मुश्किल कैसे जंग लड़ेंगी? वक्त तो इम्तिहान लेता है ना, लेता है ना। बिल्कुल। तो औरत से मजबूत तो कोई नहीं है। नहीं है ना कोई मजबूत इस औरत से। औरत मजबूत हो जाए तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये वक्त का इम्तिहान है और अल्लाह पाक कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा है और आप जैसे बहन भाइयों के ऊपर जिसने मेरी आवाज़ पहुँचानी आगे, और अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर दे। मैं तो बस यही कह सकती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, सगे बेटे ने बाप को मार डाला। वजह क्या बनी? सिर्फ जायदाद, जन जर जमीन। इनके पीछे खून सफ़ेद होता सुना तो था, लेकिन आज आंखों से देख लिया। सिर्फ जायदाद का मसला था या दिल में कोई और बुग़्ज़ भी था? मामला क्या था ये दिखाते हैं। ये साथ ही ना 2-3 बंदों को ज़िबा करके इनके टुकड़े किए।
जो मुद्दई भी था इस मुकदमे में उसी ने इसको कत्ल किया। मैंने कत्ल किया। आज के प्रोग्राम में मैं आपको जो वाकया दिखाने जा रही हूँ वो दिल दहला देने वाला है। अब्बू को हमारे सामने फायर मारे हैं सर पे। ये साथ थी ना, 2-3 बंदों को ज़िबा करके इनके टुकड़े किए। जो मुद्दई भी था इस मुकदमे में उसी ने इसको कत्ल किया। मैंने कत्ल किया। क्यों मारा? बाप दूसरी शादी की हुई थी, तुम पे सौतन डाली थी। हमारे पे जुल्म भी बहुत किया हुआ था। उनकी बहन है, उनकी बाजू तोड़ दी 2-3 जगह से। वो मारते थे, मार के फिर वो शराब पिलाते थे। ये 30/10/2020 की बात है। 3:45 बजे एक वकूआ था पुरान पिंड है इधर तहसील सरायलमगीर में, हमारे इलाका थाना में। तो 4:15 बजे 15 पे कॉल आई थी तो कि मेरे बाप को किसी ने गोलियां मार कर कत्ल कर दिया है। तो ये बंदा खुद ही अपने वालिद की डेड बॉडी लेके TH को अस्पताल सरायलमगीर आ गया था। उसके बाद ये खुद ही मुद्दई बन गया। ये सारी बातें तो मुझे पता चल चुकी हैं, सबूत क्या है आपके पास जिसकी बुनियाद पर आपने इसे अरेस्ट किया? ये 3:57 पे कहता था कि मैं अपने घर में मौजूद था, अपने चचा के घर आपको में। टाइमिंग्स का इतना अंदाजा कैसे है? ये जिस घर में रैश पजीर है ना, वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? राजा अमजद की कोठी में एक कैमरा लगा हुआ है। यानी 5-6 कैमरे लगे अच्छा, हुए हैं। मेन पे लगे हुए हैं। हाँ जी, अच्छा। मेन एंट्रेंस पे भी है और उसके तकरीबन चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो इसने मुझे बताया कि 3:57 पे ये उस कोठी में मौजूद था और वहाँ से इसने अपने वालिद के घर की तरफ से फायर की आवाज़ सुनी है और वहाँ से 3:57 पर ये उठकर गया वकूआ की तरफ गया है। हालांकि ये उस वक्त नहीं गया था। जब मैंने वो CCTV कैमरे देखे तो उसमें ये 3:12 पे वहाँ से गया है। अच्छा, और फिर जब वो मैंने सारी टाइमिंग अपने जहन में असेसमेंट की है तो 3:12 पे तकरीबन 1/2 किलोमीटर वहाँ से फासला बनता है। और जिस दीवार से ये फलांग कर जाए वकूआ की तरफ गया है, उस घर के जो जनूबी तरफ दीवार है वो कोई तकरीबन 6.5-7 फुट है। उसके नीचे बैरूनी तरफ 3 सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए थे। इसका ताकि कोई आसानी से कूद सके। हाँ, इसका कद चूँकि छोटा है ना तो इसको वो ब्लॉक रखने की ज़रूरत थी। हमारे कद का कोई भी आदमी ब्लॉक के बगैर ही वहाँ से जा सकता है। तो वो भी मुझे शक हो गया और बाकी सारी चीज़ें इसके मैंने वो CCTV फुटेज भी देख ली थी और उसके बाद इसकी CDR भी मैंने देख ली थी। ये सारी रात ही तकरीबन जागता रहा है, अच्छा, बातें वगैरह करता रहा। उसका इसने ये बहाना बनाया था कि इसके चचा अमेरिका से आ रहे हैं तो इसलिए ये जाग रहा था। अच्छा। हालांकि इसके चचा जो है ना ही ये उनको लेने के लिए गया है, ना ही कोई गाड़ी भेजी है, ना ही उनके साथ ज़्यादा इसका रब्ता रहा है। तो 3:12 पे ये वहाँ से निकला है और 3:45 पर इसने अपने वालिद को कत्ल किया है। जब इसने फायर किया है तो इनके घर के जो अफराद हैं वो जाग गए हैं। इसकी वालदा जाग गई है, इनके घर एक मेहमान आया हुआ था हरियाणा में, वो भी जागा है। वो इसको सर्च करते हैं और ये वहाँ से मिलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो मैंने इसके साथ ये सारी बातें की तो इसने कहा कि मुझे अपने चचा से कोई बात करने दे। इसका चचा भी उधर मौजूद था। उसने कहा कि मुझे इसके साथ कोई बात करने दे। तो ये 1-2 मिनट अंदर रहा। उसके बाद इसके चचा ने मुझे कहा कि यही कातिल है। इसने मेरे सामने भी बात मानी है और उसके बाद मेरे सामने भी फिर सारे मीडिया के सामने भी अनफॉर्चुनेटली यही अपने बाप का जो है वो कातिल यही कातिल निकला और जी। इसने बाप को कत्ल कर दिया और बड़ी प्लानिंग से किया। हाँ भाई, कुछ याद आया पूरी बात में से? जी, क्या याद आया? मैंने कत्ल किया। याद आ गया? चल शुक्र है। हैं? क्यों मारा? बाप दूसरी शादी की हुई थी, अच्छा, तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, तुम पे सौतन डाली थी? जो दूसरी बीवी और उसके पिछले बच्चे थे हाँ, वो सारे इधर आ गए हमारे पास ही। हाँ। तो मेरी जो बड़ी बहन है मुझसे कितना अर्सा पहले बाप ने शादी की थी? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। 12 साल में तुम्हारी माँ ने जिस पे सौतन थी उसने कुछ नहीं कहा, तुमने आके उठ के रेवेंज ले लिया। तुम्हारा तो वैसे बाप का जन्नत थी तुम्हारी। उस वक्त भी सारे खिलाफ थे उनके। तो मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है उसकी उन्होंने टांग तोड़ दी, ये दूसरी बीवी ने और मेरे अब्बू ने। उसकी टांग के ऊपर टांग रख के उसकी टांग तोड़ दी थी उसकी। क्यों? बस तशद्दुद जो कोई वजह तो इन होगी। बच्चों से
जो प्यार करे और किसी से ना करे। अच्छा, तो मेरी भी बाजू तोड़ी, मेरे भी सर फाड़ दिए। मेरी जो बड़ी बहन है, सबसे बड़ी है जो, उनकी बाजू तोड़ दी 2-3 जगह से। उस दिन तुमने प्लानिंग कैसे की बाप को मारने की? मैं 2-3 दफ़ा गया था पहले, लेकिन उनकी आदत थी रात को नहीं थे सोते हो। तो उस दिन कैसे सो गए? शराब उन्होंने बहुत सारी पी हुई थी उससे। तुम्हें कैसे पता कि शराब पी हुई थी? मैं शाम को गया था उनको रोटियां वगैरह देने, अच्छा खाना देने गया था शाम को उनको। अच्छा, तो उस क्यों हुआ? तो उनके पास बीवी थी ऑलरेडी? बीवी चली गई थी, अच्छा, उनको छोड़ा हुआ था 2-2.5 माह से। तो जो ये बच्चे थे, 3 बेटियां और एक बेटा, ये पास ही था। जो दूसरी बीवी के पहले बच्चे हैं वो वापस गए हुए थे अपने, उनको अच्छा। तलाक दी हुई थी, अच्छा, तो वो वापस गए हुए थे अपने गाँव। अच्छा, यानी कि तुम्हारे सर पे खून बहुत अरसे से सवार था, तुम्हें मौका नहीं मिल रहा था। जी। अच्छा, फिर उस दिन मौका कैसे मिला? उस दिन उन्होंने शराब पी हुई थी जब शाम को, तो मुझे था कि ये उधर सोए में। मैं फिर दीवार से ऊपर गया हूँ, चढ़ के नीचे आराम से छलांग मारी है। तो पिस्टल उनका पड़ा हुआ था साथ दूसरी चारपाई पे, तो वो मैंने उठा के तो फिर 2 फायर किए थे मैंने। समझ नहीं आती, वो जो भी था तुम्हारा बाप था, जी। तुम्हारी माँ ने उसे सजा नहीं दी, उसके माँ बाप ने उसको सजा नहीं दी, तुम कौन थे? हमारे पे जुल्म भी बहुत किया हुआ था। जिस वक्त तुम्हारी बहन को मारा उस वक्त तो तुमने मारा नहीं। उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे वालिद मुझे मारना चाहते थे इस बीवी की वजह से। तुम कहाँ थे? मैं 2012 में चला गया था घर से। मैं अपनी अम्मी को मिलने जाता था। कहाँ चले गए थे? लाहौर का एक इदारा है चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसमें था। क्यों गए? माँ तो थी ना तुम्हारी। माँ थी, लेकिन वालिद मुझे मारना चाहते थे। तो तुम्हारे ज़हन का कोई वहम था? वहम नहीं था, ये हकीकत थी। क्यों? कोई 2-3 अपनी औलाद को दफ़ा क्यों मारेगा? 2-3 दफ़ा जो लेकर किसी की औलाद पाल सकता है वो अपनी को क्यों मारेगा? 2-3 दफ़ा लेकर भी गए थे, लेकिन कोई ना कोई बंदा आ जाता था कहाँ लेके गए थे? दरिया पे, मेरी बहनों को और मुझे। तो मैं अभी इस वक्त जब मैं घर से भागा था तो अम्मी को मिलने जाता था मैं अपनी, तो उनको पता चल जाता था, फिर वो मारते थे, मार के फिर वो शराब पिलाते थे मुझे। तुम्हें? जी। सगा बाप हो गए। जी, तुम सच बोल रहे हो? मैं बिल्कुल ये मैं बातें कह रहा हूँ ठीक है। लेकिन जो कुछ भी था तुम्हें मारना नहीं बनता था, तुम कानून था, कानून, मैं इदारे हैं। जब मैं इदारे वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे जब लाहौर से, तो मैं रात को उधर से भाग के आया था स्कूल से, तो मैं था इधर पुलिस में रिपोर्ट करवाऊँ, लेकिन उस वक्त मेरे पास आईडी कार्ड ही नहीं था, तो मैं फिर वापस चला गया। प्लानिंग की तो पिस्टल वगैरह अब्बू के पास था या कि तुमने अपना खरीदा, क्या किया? पिस्टल उनका अपना था, अच्छा, लाइसेंस ही था उनका, अच्छा, जो उनके पास ही पड़ा हुआ था, फिर? तो उन्हीं के पिस्टल से मैंने किए थे फायर। चलो ठीक है, तुम्हारे दिल में गम था, गुस्सा था, तकलीफ थी, तुमने इंतहाई कदम उठाया जो कि गलत, इंतहाई गलत, जुर्म और गुनाह दोनों। फिर बाप को लेके ड्रामा क्यों किया? कभी चौकी, कभी थाने, कभी कहीं, कभी कहीं। मैंने ये ड्रामा इसलिए किया था, जो 3 रह गए थे पीछे, इनको भी मारना था मैंने। एक बीवी और 2 बच्चे थे उसके बड़े। क्या सोच के मारा था कि मारने से क्या होगा? बस जो पिछले है थे, जो तशद्दुद उन्होंने किया हुआ था हम पे, वो गुस्सा था मुझे पिछला। उतर गया अब? जी बिल्कुल उतरा। उतर गया? जी। शर्म करो, बाप को मार के कह रहे हो गुस्सा उतर गया। लेकिन उन्होंने भी सारी जिंदगी हमें कोई सुख वगैरह इस तरह तो नहीं दिया। उसके लिए तो वो अल्लाह है ना। तुम्हारा चचा तुम्हारे सर पे छांव कर रहा था ना, बाप की गलतियों को भुगता रहा था ना तुम्हारी। कुछ शर्म कर लेते, ये इंसानियत तो नहीं थी। तुम्हें जायदाद का भी मसला था ना? जायदाद का बिल्कुल नहीं था मसला, मुझे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी जायदाद की। जायदाद जो उनकी आई थी वो उनकी आई थी, अपने बाप को मार के एक कातिल बन गए। अब माँ बहनों का क्या होगा? बहन 2 मेरी बहनें, आगे पहले भी चाची उनकी परवरिश कर रहे थे, अभी भी उनके पास ही हैं। तुम सुरखरू हो, कोई नदामत है? अब शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी है अभी फिर किस बात की? कि मैंने एक कदम उठाया गलत। तुम सबके जुर्मदार हो, अपने उन बहन भाइयों के जिनका तुमने बाप छीन लिया, चाहे वो सगे हैं चाहे सुतेले हैं। खुद गुनाह किया,
तुमने कितने रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। तुम्हारे बाप की अगर इतने ही गुनाह थे बकौल तुम्हारे, तो तुम्हारे चचा वगैरह ने तो उसको बेदखल किया नहीं था, वो मिलते थे। बेदखल थे सारे, उन्होंने किया हुआ था उनको, तभी वो उनके घर चला जाता था लेकिन रोज। वो धमकियाँ देते थे सारे। अभी तुम्हारा बैकअप कर रहा है कोई? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। हाँ तो क्यों करेंगे ना वो। नाज़रीन, खून सफ़ेद हो जाए तो कुछ नज़र नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ एक गुनाह की तस्वीर करके मैं दिखाऊं तो शायद ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि इंसानियत के नाते मेरा प्रोग्राम करने का मकसद जो होता है वो अवेयरनेस होती है। तो इंसानियत के नाते वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, वो बाप, ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि इस्लाम में शादी की इजाज़त नहीं है, करें, लेकिन औलाद पर आपका जहाँ हक है वहाँ फ़र्ज़ भी है कि उन लोगों के लिए नसीहत भी है। क्योंकि माँ की गोद बच्चे की दरसगाह, और बाप का जो शफकत भरा हाथ होता है वो बच्चे को जो उसकी उंगली पकड़ के वो चलना सिखाता है, मुआशरा दिखाता है, बच्चा वही पिक्चर देखता है। तो शायद वो तवज्जो जो बच्चे को चाहिए होती है जब वो नहीं मिलती है तो अल्टीमेटली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ माइंड जाता है। लेकिन साथ साथ नसीहत भी है। जो माँ बाप या बाप से महज सिर्फ इस बात के लिए नफरत कर लेते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमें छोड़कर चला गया, ठीक है वो चला गया तो वो अपने किए का अल्लाह को जवाब दे, लेकिन आपके पास कहीं इख्तियार नहीं है कि आप उसको कत्ल करें, उसकी जान ले लें। हम तो एक इंसान की या एक जानदार चीज़ के बारे में उसको तकलीफ़ पहुंचाने से, किसी जानवर को तकलीफ़ पहुंचाने से हमारे दीन में मना किया गया है, किसी इंसान को कत्ल करने से मना किया गया है। यहाँ रिश्ते का कत्ल, मोहब्बत का कत्ल, बाप का कत्ल, एक इंसान का कत्ल, ये कई कत्ल हैं। तो जब ये आप इस तरह का कदम उठाते हैं, माँ बाप को कत्ल करने की तरफ जाते हैं, उनका जो भी किया है उसके लिए अल्लाह को जवाब दें। ताहयात तक अगर वो आपको छोड़ के चले गए हैं तो आपके मुंह से उनके लिए बद्दुआ के लफ्ज़ भी ना निकले, मारना तो बहुत दूर की बात है। मेरा ख्याल है कि शायद मैं अपने लफ्ज़ों से उन बच्चों को शायद कुछ समझाने में कामयाब हुई हूँ और उन माँ बाप को सीख देने में कामयाब हुई हूँ जो अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देते। आज के एपिसोड से मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद। ये जो औरत है इसने अपने पहले हावन को भी फायर मारा हुआ है। अच्छा ठीक है, इसने अपने हावन को फायर मारा हुआ है। इन्होंने जेल में भी कत्ल किए हुए हैं अच्छा, मेरे बाप के साथ मिलके। तुम्हारे बाप के साथ जी मिलके। तुम्हारा बाप कातिल था? खेतियाँ भी करते थे वो। तुम्हारे अब्बू? जी उनके तुम कह रहे हो तुम्हारे अब्बू डाकू थे? जी करते थे मरे वो। पे बाप के लिए जो ये लफ्ज़ बोल रहा, सोचो जी कितना शातिर है थे ये साथ थी ना औरत। अच्छा ये औरत साथ थी। इसने अपने हावन को फायर मारा है। जेल में इन्होंने 2-3 बंदों को ज़िबा करके इनके टुकड़े किए। वो भी रिपोर्ट है, उन्होंने साथ मिल के मारा आपको है। मिली ऐसी कोई रिपोर्ट मकतूल के हवाले से? हाँ जी, मकतूल भी रिकॉर्ड याफ्ता था। रिकॉर्ड याफ्ता था? अच्छा, कितने कत्ल थे मकतूल पे? एक आधा कत्ल था और बाकी 324 के मुकदमे थे, कुछ थे ना। अच्छा, ये तो हो गए ना उसकी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात हो गए। मुझे तुम जवाब दो अपने किए का। तुम्हारी वालदा को तलाक दी हुई तुम्हारे बाप ने? वो कागजी कार्रवाई नहीं थी दीदी, तो वैसे जुबानी दी हुई थी। इसको भी तलाक दी हुई है। जुबानी होती है? इसको भी तलाक दी हुई है जुबानी। वो कागजी वीडियो कार्रवाई तो हम लोग मांगते हैं, दिन में तो हो जाती जी है। वीडियो प्रूफ भी है। इसको भी तलाक दी हुई है। ये 2-3 माह से अभी ये पैसों के लिए आई है इधर। ये पैसों के लिए भी आई हुई है। अच्छा, तो पैसे हैं, ज़मीन है उनकी, वो हड़पने के लिए ये इधर आई हुई है। सारा हाथ इसका है और फसा मुझे रही है। अच्छा, तो पुलिस तो ये जो वर्दी पहनी हुई है वो तुमको सेंस ही नहीं है ना? उनको है सेंस, लेकिन मैं ये उनको तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा। अमजद बताइएगा क्या मामला था, आपने क्या सारा इसको कवर किया और उसके बाद क्या देखा? इन्वेस्टिगेशन तो ज़ाहिर हम प्रोग्राम के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन ऑन स्पॉट तो आप थे यहाँ पे। 30 तारीख को ये वाक़या पेश आया। सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब जो FIR पहली दर्ज हुई कि नामालूम अफराद ने कुरान में सजाद नामी बंदे को कत्ल कर दिया और उसका मुद्दई उसका सगा बेटा बना। अच्छा। इसने ये बताया कि इसका बाप जो है वो जो इसकी पहली वालदा के पहले बच्चे हैं, दूसरी बीवी के पहले बच्चे हैं जो सजाद के, वो उनके साथ जो है वो अच्छा सलूक रखता था, हमारे साथ सलूक अच्छा
نہیں رکھتا تھا. وہ جتنی جائیداد فروخت کر رہا تھا وہ تمام کی تمام ان بچوں کو دے رہا تھا. میں کسی چیز کا مطالبہ کرتا تھا, گاڑی کا, مکان کا, یا تو میرا باپ مجھے نہیں دیتا تھا, مارتا تھا. ایک دو دفعہ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرا بازو وغیرہ بھی توڑ دیا. تو اس گراج میں آ کے میں نے اپنے باپ کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. میرا باپ سویا ہوا تھا, کیونکہ یہ سجاد کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ سوتا نہیں تھا رات کو. یہ صبح سوتا تھا 7-8 بجے اور اس کے بعد 11-12 بجے دن کو اٹھ جاتا تھا اور پھر باقی اپنے کام کرتا تھا. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اب اسی سے یہ پوچھا گیا پولیس کی طرف سے, لیکن ابھی تک اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کیا وہ نشہ آور چیز اسے دی جس کی وجہ سے وہ سو گیا. اور اسی کے پسٹل سے جو اس کے پاس پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کے تو اپنے باپ کے سر میں پہلا فائر کیا جو یہاں کان کے پاس اسے لگا. پھر پہ در پہ اس نے 3 فائر کیے اور اس کا تینوں سر میں کیے. اور اس کے بعد خود اپنے باپ کو گاڑی میں ڈال کر پولیس چوکی لے کے آیا جو پران کے قریب ہے. وہاں پہ بتایا کہ میرے باپ کو گولیاں لگی ہیں. پھر اسے ہاسپٹل لے آیا اور پولیس نے پوسٹ مارٹم کیا اور اس کے بعد یہ تفتیش کے بعد جو ہے وہ اسے گرفتار کیا. یعنی کہ اس نے پورا شاطر انداز اپنایا. ہاں جی, اس نے پورا اس نے کیا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے کہ اس نے قتل کیا ہے. اور اس کے بعد اس نے یہ بتایا, اور جو اس نے ایف آئی آر میں قد اور حلیہ لکھوایا وہ اس کے باپ کے جو اس کی والدہ سوتیلی والدہ ہے اس کے جو پہلے بچے ہیں وہ تمام تر حلیہ اس نے ایف آئی آر میں وہ لکھوایا ہوا تھا. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف سے واپس جا کر اس سے بات کروں, اس سے پہلے میں پروگرام میں چیزیں اور دکھاؤں معاملات جیسے کیوں ہوئے, سب سے پہلے ہم ماہر نفسیات سے بات کریں گے کہ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں جنم کیوں لیتے ہیں. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن صرف مذمت کر دینا از ناٹ انف. کسی بھی انسانی جان کا جو ضیاع ہے وہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. پراپر اسیس کرنا چاہیے کہ ریزنز اور کازز کیا تھیں. اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور اس کو پبلک کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک پنشمنٹ کا بھی کانسیپٹ آئے. اس بچے کا جو اس نے اتنا بڑا اس نے یہ قدم اٹھایا, اس کے پیچھے کب سے اس کے اندر یہ چل رہا تھا. کیونکہ زندگی میں اگر آپ دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, میں اپنے آپ کو دیکھوں, دنیا میں دیکھیں, تو ہمارے ساتھ بہت سی ناانصافیاں ہوتی ہیں, لیکن ایکسٹریم سٹیپ ہم کبھی بھی نہیں اٹھاتے ہیں. اور اسلام میں اگر ہم دیکھیں, ہمارے ریلیجن میں, تو کسی بھی جاندار کی جان لینے کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہے اور سختی سے اس پہ منع فرمایا گیا ہے. اور ایک انسان کی جان لینا, اور انسان بھی کون ہے, جو کہ آپ کے جنت کا دروازہ ہے, یعنی آپ کا باپ ہے جو آپ کو دنیا میں لے کے آیا. تو کبھی بھی ماں باپ میرا خیال ہے انٹینشنلی اولاد کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے, تو اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں جب آپ چھوٹی عمر میں بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں. جب ہم یوزلی اپنے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر, ہم کوئی بھی بچہ کوئی ایکسٹریم اسٹیپ اٹھاتا ہے نا, جیسے کسی ساتھ والے کی بلی کو مار کے آ گیا, کتے کو مار کے آ گیا, کسی دوست کی پٹائی کر دی اس نے, کسی جو ہے وہ بہن بھائی کو اس نے بہت بری طرح سے مارا, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ نوٹس نہیں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, بچہ ہے, ٹھیک ہے, یہ شروع سے ایسا ہے, اس کے چچا بھی ایسے ہیں, اس کا تایا بھی ایسا ہے, ہمارے خاندان میں غصہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے وہ ایک اس کا جو بیہیویئر تھا اس کو اسٹرینتھن کر دیا. جیسے بھائی کو مارا ہے تو اچھا جاؤ, یہ کلاس والوں کو کسی نے کہا جی مجھے بچہ بہت تنگ کرتا ہے, تو میں نے یوزلی دیکھا ہے گھر میں سے بڑے باپ یا بھائی کہتے ہیں تم بھی کل اس کو ایک لگانا. جبکہ غصہ ہر چیز کی جو بیس ہے, جو روٹ ہے, وہ غصہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ غصے میں ہی آپ سے سارے غلط قدم اٹھتے ہیں. ماں باپ جو ہیں اپنی ایکٹیویٹیز, ایسی اسپیشلی ایکٹیویٹیز جو کہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, جن کے اندر جو کہ بہت ہی انلیگل ہیں, ان ایتھیکل ہیں, ان کو اپنے گھروں میں ڈسکس کرنا بند کریں. بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں, ان کی کیا کیا پرائرٹیز کیا ہیں. پیسہ خرچ کرنا تو ماں باپ کا, ہمارا سب کا فرض ہے نا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مین ایم ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ بچے کی پرسنالٹی میں ہم کیا انویسٹ کر رہے ہیں. ماں اسپیشلی جو ہے ان کا فوکس سارا دن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو ہاؤس ہولڈ اور یہ ساری چیزیں, انہوں نے جو ڈر ہے وہ صرف باپ کا بٹھایا ہوتا ہے. آج کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے. اولاد جوان ہو کر ماں باپ کا سہارا بنتی ہے. یہاں بیٹے نے باپ کو ہی جان سے مار ڈالا. قتل کا طریقہ اتنا خوفناک کہ سر میں گولیاں مار دی گئی. ایسا تو جانور بھی نہیں کرتے, وہ بھی اپنی اولاد, ماں باپ, یہاں تک کہ جنس سے محبت کرتے ہیں, وہ بھی ہم جنس کو نہیں مارتے.
आती हूँ मैं तुम्हारी तरफ दोबारा। इससे पहले कि नाज़रीन मैं इसके मजीद इंकशाफात सामने रखूँ, यहाँ पर मैं DPO गुजरात उमर सलामत साहब, चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर है और इस सारे केस में ये ब्लाइंड मर्डर था, बच्चा जो कातिल था वही मुद्दई बना हुआ था, पुलिस ने कैसे ट्रेस आउट किया, मैं DPO साहब को शामिल करूँगी अपने प्रोग्राम में। ये 30/10 को ये सुबह के वक्त हमें इतला मिली कि रात को किसी एक बुजुर्ग आदमी है, सज्जाद उसका नाम था, और उसको किसी ने सर पे फायर मार के जो है किसी ने कत्ल कर दिया। इसकी 2 शादियां थी और घर के अंदर जैसे होता है डोमेस्टिक इश्यूज और सारे मामला, पुलिस ने उस अंदाज से भी तफ्तीश शुरू की। इसका बेटा जो मोहम्मद अली है वही इसमें मुद्दई बना। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मुझे SHO ने और DSP ने बताया कि जो इसका बेटा है जो कि मुद्दई है, उसकी जो हरकत हैं वो थोड़ी मशकूक है, हमें उसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए। जो पुलिस की ह्यूमन इंटेलिजेंस है या पुलिस की जो अपनी, जब उसको शामिल तफ्तीश किया तो उसके अलावा जो टेक्निकल डाटा हमने इसके अंदर एनालाइज़ किया तो अंदाज़ा हुआ कि उसका जो बेटा है वही जो मुद्दई भी था इस मुकदमे में, उसी ने इसको कत्ल किया है। और उसकी जो फिर हमने मज़ीद इंटेरोगेट किया तो वजह उसकी ये निकली कि चूँकि इसकी 2 शादियाँ थी तो ये कह रहा था कि जो हमारे साथ हमारे बाप का रवैया ठीक नहीं था, हमें ये पैसे और जायदाद में से जो जायदाद का इशू, जायदाद में से हिस्सा और वो सारी चीज़ें हमें नहीं देते, ये दूसरी जो बीवी थी उसको वो ज़्यादा करता। तो ये एक बड़ा अच्छा पुलिस ने इसको डिलीजेंटली और बड़ा इसको। अच्छा, ये जो मकतूल था क्या इसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह था ऐसा? जी, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। अच्छा। और इवन जो दूसरी शादी थी वहाँ भी कुछ इस तरह के इश्यूज थे। हमने उस एंगल पे भी देखा, तो तमाम एंगल्स को पुलिस ने देखा, चूँकि इसीलिए ये केस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी था, ब्लाइंड भी था, कॉम्प्लेक्स भी था, क्योंकि इसका अपना भी रिकॉर्ड था। और फिर इसके एक जो भाई है वो ही ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, वो अमेरिका से आया मेरे पास, वो बड़ा कंसर्न थे जी हमारे भाई का जो मर्डर हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इसको विदिन 2 वीक्स से इसको वर्कआउट कर लिया। ये जो बच्चा है ये अभी तक पुलिस ने ज़्यादा सारा इसका मेडिकल चेकअप भी करवाया होगा, साउंड माइंड है, साथ किसी और की कोई मिली भगत अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आई सामने? डेफिनेटली वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेशन का है। अभी तक तो ये इसने खुद ही सारा कन्फेस भी किया है कि इसी ने कत्ल किया है, और इसी रंजश भी इसने बता दी जो वजह इसकी अपने बाप के साथ थी। तो लेकिन हम इसको मजीद भी इंटरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुद्दईयत किसके पास है केस की? मुद्दईयत तो पहले तो इसके बेटे के पास ही थी। अब सेकंड वाइफ के पास चली गई? जी डेफिनेटली उसके जो भी लीगल हेयर हैं उनके पास हो चली गई। ठीक है। क्यों मारा? बाप दूसरी शादी की हुई थी, तुम पे सौतन डाली थी? हमारे पे जुल्म भी बहुत किया हुआ था। बहन है, उनकी बाजू तोड़ दी 2-3 जगह से, वो मारते थे, मार के फिर वो शराब पिलाते थे।